अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है और इस इजलास से आज अमरीकी सदर ट्रंप ने एक गैर मामूली खिताब किया और मुकर्ररा वक्त से जो यानी कि 15 मिनट के बजाय तकरीबन 1 घंटा तवील खिताब किया। सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर के आगाज़ में एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर के ख़राब होने पर अक़वाम मुत्तहिदा का मजाक उड़ाया। I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. इसके बाद ट्रू सोशल पर भी अपने पैगाम में इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा पर ट्रंप ने फिर तनकीद की, जबकि अपनी तकरीर में ट्रंप ने एक दफ़ा फिर भारत और पाकिस्तान की जंग का जिक्र करते हुए दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाने का दावा कर दिया और ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिलसिले में उनकी कोई मदद नहीं की। In a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. Pakistan and India, Israel and Iran. No other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. Too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help. That being the case, what is the purpose of the United Nations? Now, after ending all of these wars and also earlier negotiating the Abraham Accords, which is a very big thing for which our country received no credit, never receives credit, everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में गजा की जंग का भी जिक्र किया और अमेरिका और इसराइल के ज़्यादातर मगरबी इत्तेहादियों के बरक्स इसराइली मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दोहराया और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम करार दिया, जिस पर इसराइली मंदूब तालियां बजाते नजर आए। I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. Thank you. We have to stop the war in Gaza immediately. We have to stop it. इसके अलावा सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में चीन और भारत का नाम लेकर उन पर तनकीद की और कहा कि वो रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग को सबसे ज़्यादा फंड कर रहे हैं। साथ ही रूसी तेल की खरीदारी पर ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक को भी तनकीद का निशाना बनाया। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil, but inexcusably even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. We have an ocean in between. You're right there. They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. It's embarrassing to them. They have to immediately cease all energy purchases from Russia. Otherwise, we're all wasting a lot of time. जबकि अब से कुछ देर बाद ट्रंप अहम अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकात करने जा रहे हैं, जिनमें
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं इस मुलाकात में। सदर ट्रंप गजा में जंग के खात्मे और इसके बाद का एक मंसूबा पेश करेंगे और इन ममालिक को इस मंसूबे पर एतमाद में लेंगे। ट्रंप की जानिब से मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है कि जब मसला फ़लस्तीन और गजा में जारी इसराइली जारियत की वजह से अमरीका और इसराइल की आलमी तन्हाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद अब फ्रांस समेत मजीद 6 मगरबी ममालिक ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, जिसके बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सिर्फ अमरीका ही वो वाहिद मुस्तकिल रुकन रहता है जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता। ऐसे में अब ट्रंप की जानिब से गजा से मुतालिक अहम मंसूबे की कुछ तफसीलात भी सामने आ गई हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि अमरीकी और अरब हुक्काम के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं के एक ग्रुप को गजा में जंग के बाद की हुकूमत के उसूल पेश करेंगे और ये अब तक ट्रंप की जानिब से जंग ख़त्म करने के लिए सबसे वाज़ेह तजवीज़ होगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के लीडर्स और आला हुक्काम इस मुलाकात में शरीक होंगे। यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे के अलावा सदर ट्रंप इसराइल के गजा से इनखला और जंग के बाद गजा की हुकूमत के उसूलों पर बात करेंगे, जिनमें हमास का कोई किरदार शामिल नहीं होगा। अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक अपनी फ़ौजें गजा भेजने पर राज़ी हों ताकि इसराइल वहाँ से निकल सके और ये ममालिक गजा की तामीर नौ और अबूरी दौर के लिए माली मदद भी फराहम करें। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि उनका मुल्क गजा में अमन कायम करने के लिए फ़ौज भेजने को तैयार है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि गजा में जंग ख़त्म करने और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर मुज़ाकरात फ़िलहाल रुके हुए हैं। इसी दौरान इसराइल आर्मर्ड और इन्फेंट्री फ़ौज के 3 डिवीजन्स के साथ गजा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक कल की मुलाकात खासी अहम हो सकती है। हमारे पास जंग ख़त्म करने का एक वाज़ेह आइडिया मौजूद है। हम वो रास्ता पेश करना चाहते हैं जो हमें काबिल अमल लगता है और हम चाहते हैं कि खित्ते की हिमायत और ताउन से ये कामयाब हो। जबकि एक अरब एहलकार के मुताबिक हम ये समझते हैं कि ट्रंप हमारी राय और हिमायत चाहते हैं ताकि वो जंग ख़त्म करने के लिए तैयार अमरीकी मंसूबे को आगे बढ़ा सकें। अरब और अमरीकी हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पेश किया गया कोई इसराइली मंसूबा नहीं होगा, बल्कि ये एक अमरीकी मंसूबा होगा। एक इसराइली एहलकार ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मंसूबे के खदोखाल से आगाह हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि इसमें कुछ बातें ऐसी होगी जो इसराइली हुकूमत को पसंद नहीं आएंगी, ख़ास तौर पर मुस्तक़बिल में गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार के हवाले से। इसराइली एहलकार ने मज़ीद कहा कि हमें कुछ कड़वी गोलियां निगलनी पड़ेंगी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि आइंदा हफ्ते नेतन्याहू वाइट हाउस पहुँचेंगे, जहां जनवरी से अब तक उनकी ट्रंप के साथ ये चौथी मुलाकात होगी। गजा इस मुलाकात का सबसे अहम मौजू होगा। इसके अलावा इसराइली मीडिया भी इसी तरह की खबरें दे रहा है और उनका भी दावा है कि यह मंसूबा इसराइल की जानिब से तैयार नहीं किया गया, मगर इसराइली हुकूमत को इस मंसूबे की तफसीलात बता दी गई हैं। दूसरी जानिब फॉक्स न्यूज़ ने दावा किया है कि हमास ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए ट्रंप इंतज़ामिया को ख़त तैयार किया है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के एक सीनियर एहलकार और मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल एक ज़रिए के मुताबिक हमास ने सदर ट्रंप के नाम एक ख़त तैयार किया है, जिसमें अमरीकी सदर से दरख्वास्त की गई है कि वो 60 दिन की जंगबंदी की ज़मानत दें तो आधे यरगमालियों को फ़ौरन रिहा कर दिया जाएगा। यह ख़त इसी हफ्ते ट्रंप तक पहुँचने की तवक्को है। इस सारी सूरत हाल में कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक अहम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके दौरान फ्रांस समेत बेल्जियम, एंडोरा, मोरक्को, लग्जमबर्ग और माल्टा के रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस समेत इन ममालिक की जानिब से इस फैसले को इंतहाई कदम करार दिया जा रहा है और इस ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के अब तकरीबन 80% से ज़ायद रुकन ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं और हालिया पेशरफ्त को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस समेत 6 ममालिक ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास से पहले एक आला सतही कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस, जिसने कल सऊदी अरब के साथ मिलकर इस इजलास की मेज़बानी की थी, उसके अलावा एंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा और मोरक्को ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और बरतानिया के रहनुमाओं ने भी इस इजलास में शिरकत की, जिन्होंने एक रोज़ पहले बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया था। अब इन नए ममालिक के शामिल होने के बाद तकरीबन 193 में से 147 रुकन ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। दुनिया की 80% से ज़्यादा आबादी
फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर चुकी है, जिससे इसराइल पर सिफारती दबाव में इजाफा हुआ है, क्योंकि वो गजा में नस्ल कुशी की अपनी जंग जारी रखे हुए है, जहां अब तक 65,300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं और पूरा इलाका खंडर बन चुका है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने गुज़िश्ता साल फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया था, जबकि स्पेन ने इसराइल पर पाबंदियां भी आयद की थी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल और अमरीका जो इस मसले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई तन्हाई का शिकार हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया था। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़्यादातर रुकन ममालिक अब फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए सलामती काउंसिल की हिमायत ज़रूरी है, जहाँ अमरीका ने बार बार वीटो का इस्तेमाल करके फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनने से रोके रखा है। कतर के हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुल्तान बरकात के मुताबिक फ़लस्तीन को तस्लीम करना महज अलामती अमल नहीं है, बल्कि यह फ़लस्तीन के मकसद के लिए हकीकी और अमली हिमायत है। इस हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन सबसे अहम मौजू होने की तवक्को है। इस इजलास में 140 से ज़ायद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर से रिपोर्टिंग करते हुए अल जज़ीरा के नुमाइंदे हाशिम अहल बर्रा ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं के दरमियान दो रियासती हल पर बात करने के लिए एक नया मोमेंटम बनता जा रहा है, जिसमें खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के साथ साथ वजूद रखेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि असल मसला ये है कि काबिल अवल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमरीकी हुकूमत की रजामंदी दरकार है, जो इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती, जबकि कई यूरोपीय रहनुमाओं के लिए यह सिर्फ एक अलामती कदम नहीं बल्कि एक नई सियासी तरतीब लाने की कोशिश है। और उनका कहना है कि उनके पास वो रसूख है जिसे वो बिलाखिर गजा की जंग ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। गुज़िश्ता साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें इसराइल से मुतालबा किया गया था कि वो 1 साल के अंदर फ़लस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा ख़त्म करे।